हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका राहुल सर और मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स पाथ विद राहुल सर में। हमारा ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसका आप यूज कर सकते हो आने वाले एनुअल एग्जाम में। तो हमारा अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट फंक्शन। तो फंक्शन टॉपिक ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, if f of m is equal to m square minus 3m plus 1, find f of 0, f of minus 3, f of x plus 1 and f of minus x. Okay, now in this function your domain is what, m, so your equation is what, m square minus 3m plus 1. Now for this example है ना, पहला हमें फाइंड करना है f of 0. टू फाइंड f of 0 पहले हम काम कर लेते हैं, गिवन f of m is equal to m square minus 3m plus 1. Okay, so this is your actual function. On this function, your m is called domain. Okay, now for different domains, for m is equal to 0, m is equal to minus 3, m is equal to x plus 1 and m is equal to minus x, हमें इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलो पहला, तो हम पहला फाइंड करेंगे एट m is equal to 0, है ना। हमें क्या चाहिए, f of 0 चाहिए। तो f of 0 के लिए हमें क्या करना है, m की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये आ जाएगा f of 0 is equal to 0 square minus 3 in bracket 0 plus 1 and this will be equal to 0 minus 0 plus 1. Answer is 1. Finish. खत्म हो गया। चलो ये खत्म हो गया। Now next one, at m is equal to minus 3, है ना। तो यहाँ पे m is equal to minus 3 पुट अप करेंगे। minus 3 देखो यहाँ पे 0 चाहिए था, f of 0 यहाँ पे आ गया, f of minus 3 था, f of minus 3 आ गया। बस इतना ही करना है। तो जहां पे m देख रहा है वहां पे minus 3 पुट अप करो। minus 3 ब्रैकेट स्क्वायर into minus 3 into minus 3 plus 1. So this, okay, 3 square minus 3 square is plus 9 and this is also plus 9 plus 1. Answer will be 19. Answer will be what? 19. Now third example. Now in third example, at m is equal to what, x plus 1. At what, x plus 1, क्योंकि यहाँ पे m की जगह पे x plus 1 है, तो you will get what, f of x plus 1 is equal to x plus 1 bracket square minus 3 in bracket x plus 1 plus 1 plus 1. Now expand this bracket first by the a plus b bracket square formula. Is x square plus 2x plus 1 minus 3x multiplied by 3 inside minus 3x minus 3 plus 1. Okay, so answer will be x square plus 2x minus 3x is minus x. Then this is what, plus 1 is plus 2, plus 2 minus 3 is minus 1. Okay, and this will be your value of x plus 1. Okay, now your next example is find x if g of x is equal to 0. Already g of x का value 0 दिया हुआ है and we have to find the value of x and already two questions are given here. Okay, चलो तो यहाँ पे पहला give okay, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, find the value of x when this is your g of x. तो given लिख लेते हैं, g of x is equal to 5x minus 6 divided by 7. यहाँ पे लिखो but g of x is equal to what, 0, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है g of x is equal to 0. Okay, so therefore ये a क्वेश्चन है, a के लिए, ठीक है। Okay, g of x का वैल्यू कितना है, 5x minus 6 divided by 7 is equal to 0. Pull this 7 on the other side, so 7 into 0 is 0. 5x minus 6 is equal to 0. Pull this 6 on the other side. Now this is minus 6. After pulling on the other side, you will get positive 6. Positive 6. So what is the value of x here? X is what? 6 by 5. And this will be your final answer. Finish. इतना ही करना है, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं है। चलो next ले लेते हैं। Second b के लिए given क्या है? g of x is equal to 18 minus 2x square divided by 7. But again g of x is equal to कितना है, 0 है। Therefore 18 minus 2x square by 7 is equal to what, 0 ना।
Okay, therefore 7 pull on the other side. 18 minus 2x square is equal to 0. 0 into 7 same thing जो पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, है ना. Now pull 2x square, that is negative actually. उधर करने के बाद पॉजिटिव और लिखते समय हम लेफ्ट हैंड में लिख रहे हैं, तो you will get what? 2x square is equal to 18. So x square is equal to 18 by 2. That is what? How much? 9, na? So x square is equal to 9. And what will be the value of x? X is equal to plus minus 3. And this will be your final answer. Very simple. इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमें g of x का वैल्यू 0 था, तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 लेके इसको सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल. So now your next example is solve for x log 2 plus log of 2 plus x plus 3 minus log of 3x minus 5 is equal to log 3. We have to find the value of x. X का वैल्यू फाइंड करना है. To find the value of x, we need some formulas of logarithm. ठीक है ना. तो पहला फॉर्मूला क्या है? log mn is equal to log m plus log n. Next one is log m by n is equal to log m minus log n. Next one is what? Log m raised to n is equal to n log n. Okay. These three formulas are important to solve this example. जो भी और बचे हुए दूसरे जो एग्जाम्पल है उसके सॉल्व करने के लिए कुछ और भी फॉर्मूले लगेंगे, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता जाऊंगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं. व्हाट इज गिवन? log 2 प्लस log of x plus 3 minus log of 3x minus 5 is equal to log 3. ओके ना. पहले आप ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों में क्या दिख रहा है? एडिशन दिख रहा है. सो सपोज लॉग लॉग का एडिशन है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3. क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू लॉग 3. एंड विच फॉर्मूला आई यूज हियर? दिस वन. हाँ, एडिंग मल्टीप्लिकेशन था, ये यूज कर लिया. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? नाउ इन दोनों में क्या दिख रहा है? इन दोनों में सबट्रैक्शन दिख रहा है, तो मतलब ये m है. दिस टोटल इज m एंड दिस इज व्हाट? टोटल n. तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3. And I use this formula. Log m by n is equal to log m minus log n. ठीक है ना. दोनों का डिवीजन था. अभी इस केस में थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों साइड लॉग लॉग है, और दोनों साइड लॉग लॉग है, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये 3, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. तो यहां पे मैं बाय इक्वालिटी लिखूंगा. बाय इक्वालिटी, है ना. कॉमा क्या क्या मिला? 2 in bracket x plus 3 divided by 3x minus 5 is equal to 3. Very simple. Okay, therefore now take cross multiplication. मतलब यहाँ तो 1 था, 1 into 2. ठीक है, तो ये जो 3x minus 5 pull on the right hand side, तो you will get what? 2x plus 6 after multiplying by this 2 and multiplying by this 3, you will get what? 9x minus 15. हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है. तो x पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये 9x है और ये 2x है, तो 2x को पुल उस साइड करो और 15 को इस साइड. तो करता है हमें, चलो 9x minus 2x और ये 15 राइट ऑन दिस साइड. तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, सो टोटली you will get what? How much? It is what? 7x. 7x is equal to 21. So x is equal to what? 21 divided by 7. That is equal to 3. So value of, what is the value of x here? X is equal to 3. X is equal to 3 here. Okay. So now your next example is solve for x. 2 log of x to the base 10 is equal to 1 plus log x plus 11 divided by 10 to the base 10. यहाँ पे actually in logarithm there are two types of logarithm. First one is the natural logarithm and second one is the common logarithm. जो आप फिजिक्स में यूज करते हो, दैट इज व्हाट कॉमन लॉगरिथम, बिकॉज बेस ऑफ दैट लॉग इज 10. ओके. और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा है ना. ये जो इसमें जो प्रीवियस एग्जांपल में
जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उस प्रीवियस एग्जाम्पल में बेस इज नॉट गिवन है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम में बेस होता है ई। क्या होता है, बेस ई। जैसे आप कोई नंबर की डिवाइड में सपोज 2 है तो 2 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखते, मतलब 1 होता ही है। वैसे ही जहां पे लॉग के बेस में दिया नहीं है, मतलब क्या है, वो नेचुरल लॉगरिथम है, उतना थोड़ा सा याद रखो, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल में आपका बेस कितना है, 10 है, तो दिस इज व्हाट कॉमन लॉगरिथम। चल, तो अभी हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करना है, ये प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a टू द बेस a, है ना। हमें प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 10 है, यहां पर भी 10 है, तो हमें जो ये जो 1 दिख रहा है ना, तो 1 को रिप्लेस करना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये 1 को क्या करना है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको जब भी आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो उसका बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप a का, तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू 10 ले लिया, तो ऊपर वाला जो a है उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो हम 1 के जगह पे हम पुट अप करेंगे log 10 टू द बेस 10। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन पहले लिखेंगे 2 log of x to the base 10 is equal to 1 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10। ओके, तो पहला मैंने काम क्या बोला कि ये जो 1 है, 1 को हम करेंगे log 10 to the base 10 में कन्वर्ट। तो 2 into log x to the base 10 is equal to log 10 to the base 10 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10। ओके, ठीक है। नाउ यहां पे हमें यूज करना है लॉग, दो रूल यूज करना है। पहला रूल यूज करना है log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log mn। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये रूल यूज किया था, ठीक है ना। ओके, और दूसरा रूल यूज करेंगे log ऑफ m रेज़ टू n इज इक्वल टू n log n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में, तो पहले तो बेस 10 है, दिस इज व्हाट, ये सर्कल पार्ट है, दिस इज व्हाट बेस। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो मुझे ये रूल यूज करना है दिस वन फॉर द राइट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग के पहले कुछ तो नंबर दिख रहा है, तो मुझे यूज करना है दिस प्रॉपर्टी फॉर द लेफ्ट हैंड। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, log इन ब्रैकेट 10 इन ब्रैकेट x प्लस 11 बाई 10 ब्रैकेट कंप्लीट टू द बेस 10। ओके, अभी ये बेस 10 ही, इसका बेस में 10 ही क्यों किया, इसके लिए भी कुछ तो रीजन है, ठीक है ना, आगे जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। Therefore, ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ, ये 10 से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 10x प्लस 11, 10 गेट कैंसिल ना, टू द बेस 10। अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, और दोनों का बेस सेम टू सेम है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों का जो बेस था वो नेचुरल लॉगरिथम था, ई था, मतलब कुछ भी नहीं दिया था, मतलब नेचुरल लॉगरिथम था, और यहाँ पे भी दोनों का सेम है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमने इसका बेस 10 लिया था, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 11 बाय व्हाट, इक्वालिटी, बाय इक्वालिटी, ठीक है। चल, तो अभी ये इक्वेशन हो गया ना, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड टू फैक्टर्स whose multiplication is what, minus 11, and addition is minus 10. Addition is minus 10 and multiplication is minus 11, तो 11 ones are okay, but ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, बड़ा नंबर, क्योंकि इसका साइन माइनस 11 है इसके लिए, ठीक है। तो therefore सॉरी, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। therefore x in bracket x minus 11 plus 1 in bracket x minus 11 is equal to 0. Therefore, first factor is what, x minus 11, and second factor is x plus 1 is equal to 0. So finally, you will get x is equal to 11. Okay, so now your next example is if log of x plus y divided by 3 is equal to
half log x plus half log y show that x by y plus y by x is equal to 7। तो हमें क्या करना है, इसको शो करना है। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मस्त एग्जांपल है। चलो कैसे करना है देखो, सिंपल है, यहाँ पे x बाय y है, y बाय x इज इक्वल टू 7 है, लॉग तो कुछ नहीं है, तो लॉग को हमें एलिमिनेट करना है। तो लॉग कैसे एलिमिनेट होगा उस पे पहले फोकस करना है, ठीक है ना। चलो तो पहला क्या गिवन है, गिवन log of x plus y by 3 is equal to half log x plus half log y। ओके, तो पहला एक काम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, तो हमें वो 2 को डिलीट करना है। हाउ टू एलिमिनेट दिस 2? बाय मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन द बोथ साइड, सो यू विल गेट व्हाट, 2 into log of x plus y divided by 3 is equal to log x plus log y। अभी ये दोनों प्रॉपर्टी अभी पिछले एग्जांपल में हमने यूज किया है। यहाँ पे तो क्या एडिशन है, तो एडिशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन log of xy हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, log of x plus y by 3 ब्रैकेट स्क्वायर है ना, ये 2 इधर जाएगा। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, log m plus log n is equal to what, log mn, and second property is what, n log m is equal to log m raised to n, है ना। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज लॉ ऑफ पावर। ओके चलो अभी आप चेक करोगे, दोनों का लॉग दिया नहीं है, दोनों का लॉग दिया नहीं है, मतलब लॉग नहीं दिया, मतलब वहां पे कितना होता है, ई होता है, कितना होता है, ई होता है, मतलब दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। और दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, तो डेफिनेटली वी कैन कंपेयर, मतलब बाय इक्वालिटी, बाय इक्वालिटी। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बाई 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई। चलो एक काम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करता हूं मैं, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई। नाउ बाय स्क्वेयरिंग, अभी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, x square plus 2xy plus y square is equal to 9xy, correct na, pull this 9 on the right hand side, so 9xy। okay, now this 2xy pull that side, कितना हो जाएगा, x square plus y square is equal to 2xy, पॉजिटिव है, उस साइड जाने के बाद नेगेटिव, तो 9xy minus 2xy that is what, 7xy। okay 7 तो आ गया, देखो RHS में 7 चाहिए था, तो 7 आ गया। अभी ये xy नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय xy ऑन द बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy एंड 7xy डिवाइडेड बाय xy। तो आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट व्हाट, x गेट कैंसिल ना, तो यू विल गेट x बाय y, दूसरे में y गेट कैंसिल, y बाय x इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू व्हाट, 7, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। This will be your final answer. Finished. Very simple question है ना। बस हमें क्या करना है, ये जो 2 है डिवाइड में, वो पहले पुल किया, पुल करके हमने लॉ ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ प्रोडक्ट का दोनों का रूल यूज किया, बाय इक्वालिटी हमने इक्वेशन जस्ट सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी सिंपल टॉपिक, ये ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं है, बस जितने क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं वो क्वेश्चन बस इतना सही से करो, हो जाएगा, ठीक है। ओके ना, ये क्वेश्चन क्या है देखो, इफ f of x is equal to 2x square plus 3, g of x is equal to 5x minus 2, then find f of g, g of f, f of f and g of g। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर और एक दूसरा फंक्शन, ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी से हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ओके हाँ ठीक है, चलो तो व्हाट इज गिवन हियर, पहले गिवन लिख लेते हैं। तो f of x is equal to what, 2x square plus 3 and g of x is equal to 5x minus 2। तो पहला हमें फाइंड क्या करना है, f of g of x, ऐसे होता है, ये होता है ना, एग्जाम्पल में f of g दिया हुआ है, बट एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, f of g of x। तो इसका मीनिंग क्या है, f of g of x, ऐसे लिखेंगे इसको हम, है ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। व्हाट इज g of x, g of x क्या है, g of x राइट डाउन इनसाइड 5x minus 2, कितना आएगा
5x minus 2. Okay, now this is your domain. अभी ये डोमेन हो गया किसका? f of x का. देखो ना, f of x की जगह पे कितना आया? 5x minus 2. तो जहां जहां पे हमने अभी पहला एग्जांपल भी सॉल्व किया था f of n वाला, वहां पे n की जगह पे हमने अलग अलग वैल्यूज पुट किए थे. कभी 0 पुट किया, कभी -3 पुट किया, कभी -x पुट किया. तो सेम थिंग इज हियर. यहां पे हमें x की जगह पे f of x की जगह पे f of 5x minus 2 है. तो जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे हमें 5x minus 2 पुट अप करना है. तो क्या है देखो, 2 इन ब्रैकेट 5x minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 है ना. यहाँ पे इतनी जगह पे x था, करेक्ट ना. कहां पे x था? यहाँ पे x था. तो उसी जगह पे आपने 5x minus 2 पुट अप किया. अभी इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, नॉर्मल. अभी तो नॉर्मल है. अभी ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है. 5x स्क्वायर कितना आएगा? 25x स्क्वायर. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज व्हाट? -10 माइनस इंटू 2 है ना. तो कितना आएगा? -20x प्लस 4. ये हो गया स्क्वायर प्लस 3. नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड दिस 2. तो कितना आएगा? 50x square minus 40x plus 8 plus 3. So simplify this. 50x square minus 40x plus 11. And this will be your what? F of g of x. This is called what? F of g of x. ठीक है? चलो. Okay. चलो. Next part is what now? B part. है ना? B क्या? What is B? G of f of x. क्या करना है? पहला g है और अंदर f है. ठीक है ना. इसका आधा क्वेश्चन इधर दिया है. ओके, ठीक है. चल, g of f of x मतलब आप क्या करोगे? g of f of x. तो f of x का वैल्यू क्या है? What is f of x? F of x is 2x square plus 3. Okay. Now what is g of x? Your g of x is here. g of x is this. पर x की जगह पे कौन है? अभी x की जगह पे कौन दिख रहा है? 2x square plus 3. करेक्ट ना. 2x square plus 3. तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप 2x square plus 3 पुट करोगे. तो यह आएगा 5 in bracket 2x square plus 3 minus 2. Okay, so now 5 multiply inside. It is got 10x square plus 15 minus 2. So finally you will get 10x square plus 30. So this is your what? G of f of x. This is what? G of f of x. Correct? Now बचा कौन है? f of f and g of g. f of f and g of g. Okay? चलो, तो क्वेश्चन तो वही है, सेम है. इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है. इक्वेशन क्या क्या है? ये एक है और दूसरा यहाँ पे एक है. ठीक है ना. चल करते हैं. तो पहला हमें क्या कर निकालना है? C f of x. तो ये कैसे आएगा? f of x. ठीक है ना. चलो इसको सॉल्व करेंगे. f क्या दिया हुआ है? f of x कितना है? अंदर 2x square plus 3. अभी देखो, आप इसको कंपेयर करो. देखो यहाँ पे x की जगह पे f बाहर है, यहाँ पे भी f बाहर है. तो x की जगह पे कौन है? 2x square. तो इस फंक्शन के अंदर जहां पे x दिख रहा है ना, कहां पे x दिख रहा है? तो 2 इन ब्रैकेट यहां पे x है ना. तो x का वैल्यू क्या है? 2x square plus 3 ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, दिस 2 plus 3 इस तरह से आएगा. ठीक है, वेरी सिंपल है ना. जहां पे x दिख रहा था यहां पे अंदर x है, तो अंदर मैंने x पुट किया. बाकी देखो 2x square plus 3 एज इट इज मैंने लिखा. नाउ स्क्वायर ऑफ दिस. इसका स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर. तो 4x raised to 4. देन सेकंड में आएगा, सेकंड टर्म क्या आएगा? 6 into 2 means what? 12x square and last is 9 plus 3. Now simplify, multiply inside. 8x raised to 4 plus 24x square plus 18 plus 3. That is equal to 8x raised to 4 plus 24x square plus 21. And this will be your value of f of x. f of x. ठीक है. So now your next example is what? G of d. G of x. So you can write this out. G of square bracket of g of x. तो पहले तो अंदर वाला पहले पुट अप कर लो. पहले g कितना है? 5x minus 2. ओके, 5x minus 2. नाउ अभी कंपेयर करो. देखो कंपेयर करो. इस g के अंदर 5x minus 2 है, इस g के अंदर कितना है?
x है, तो x की जगह पे 5x माइनस टू आएगा। जहां जहां पे x दिख रहा है यहाँ पे x है, तो उसके अंदर 5x माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 इन ब्रैकेट 5x माइनस टू that is equal to 25x minus 10 minus 2. So answer will be what? 25x minus 12, and this will be what? g of x. Okay? Yeah. ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बस बाकी फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते थे। बस सही से प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व करो, और प्रैक्टिस करने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करो। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक वो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो बच्चों लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आने वाले जो 12th स्टैंडर्ड के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप तक डायरेक्ट आ जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाना मत भूलना, और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड जिसको इसकी बहुत जरूरत है। 11th स्टैंडर्ड में जिसको पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ये वीडियो शेयर करो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।